भी और टूर्नामेंट के बाद भी ये दोस्ती बनी रहे। Yes, Ankur Singh bowling, open the bowling attack. He is the key all-rounder so far, one of the focus all-rounder in Azamgarh Premier League. First semi-final, remind you, remind you, Kamakshi Group Barabanki won the toss, selected field first. Today is a slightly hazy morning. 7 ओवर का मुकाबला है, 5 गेंदबाज कंपलसरी, 30 मिनट में 6 ओवर. अंकुर सिंह फेसिंग हिम Saurabh Yadav, non-striker is Rakesh Kumar. Yesterday he made a half century. Here goes Ankur Singh, first ball of the first semi-final. Both this time goes his back foot, a soft and cut straight to point with the stroke batsman through for one. 10 में से 9 गेंदबाज पहली गेंद तेज करने का प्रयास करते हैं। अंकुर सिंह एक ऐसे वाहिद खिलाड़ी है जिन्होंने धीमा लेग कटर किया था बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज के लिए और 1 रन पूरा करते हुए सौरभ और अंकुर अब दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अब ओवर द विकेट आना चाहेंगे। Rakesh Kumar, who hits a great 50 yesterday, chasing a huge total. This is the very important stage of Rakesh Kumar career. Here goes Ankur Singh, left arm over the wicket, facing him Rakesh Kumar. Backward point, cover, extra cover and mid off inside the ring. Oh, beauty, beauty. On the stump but equally played with the short back lift turning on the onside and they threw for one. Yes, the good part is both the batters are not there to waste any time. They both have started off with a single and I think that's a very cautious approach to the batting. They are not trying to go for any big hit against the Ankur Singh's bowling, but very cautious start, 2 without loss. Ankur Singh, left arm round the stumps. This time once more batsman check his stroke. Another slower one from Ankur. That was a real beauty. He just tries to bring his arm near his ears and that's where he decides whether I'll be going fast, I'll be going slow. And this all happens with practice and with the experience. Ankur Singh trying to lead his team from the front and 3 marvelous deliveries for the batting side by him. 3 singles so far. Very slow and steady start. This time using his feet. Ankur dropping short. Batsman tried to turn on the onside. We wait for umpire signal. Leg by. Harish, do you think toss is very important? Toss is important, but toss is not everything. Because even after winning the toss, if you don't bowl in right areas, if you don't try to pitch up the ball, then you can go for a whack or 2. But this time, if you look at Ankur Singh, he is varying his line and length. He is shuffling between over the wicket and round the wicket, and that's what flexibility is all about. The way you see Naushad striking the right chord through his music from the very first tone. Similarly, he is in the rhythm right now. Ankur Singh, so far control bowling. This time on the stump, lovely looking drive, but equally stopped from the long on fielder left of him. Excellent fielding, supporting Ankur Singh. I think this is a sensational start by Kamakshi Group Barabanki after winning the toss, giving away just 5 runs in 5 deliveries. Speaks volumes about the standard of fielding set by Kamakshi Group Barabanki, team owned by Piyush Srivastav and Manish Singh. Ankur Singh, left arm over the stumps. This time down to leg side should be a wide. Yes, it is. Yes, I think this time he tried generating that extra pace, but couldn't quite control the line. And the start of sundries in the scorebook by Saiba Momin, the man who has worked endless hours practicing scoring and using colorful pens to decorate the scorebook. Ankur Singh, left arm over the stumps, goes past us. This time lovely delivery. What a bowling from Ankur in first mandatory power play. That marks an excellent over, economical over, turn from the focus man of Azamgarh Premier League. Ankur Singh consider only 7 runs.
Yes, there was one wide. Otherwise, beautiful mixture. If you look, he tried bowling a change of pace to the lefty Saurabh, and he definitely had a plan up his sleeve, and he got succeeded in it. So at the end of first over, it's a cautious start. 7 runs gone, and new over shall commence from Rehan Sanjari Pavilion end. I think we are thankful to Mr. Rehan Sanjari, Director PCM Group of Companies Dehradun, who was the chief guest in the inauguration ceremony, and he is being generous to go ahead and bless the organizing committee. So thank you so much, Mr. Rehan Sanjani from PCM Group of Companies Dehradun, and we are awaiting your arrival for the closing ceremony today. एक ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 7 बिना किसी विकेट के सीआरपीएफ, लेकिन शुरुआत अंकुर सिंह की ज़बरदस्त गेंदबाजी से रही, जहां पे उन्होंने केवल थोड़ा बहुत जो नमी पिच में रहती है उसका अच्छा लाभ उठाया। गेंदबाजी के लिए बंटी पटेल ऑल इंडिया अकाउंट को रेहान संजरी एंड से लगाया गया है, उस एंड से गेंदबाजों को हमेशा मदद रही है। लेग कटर की कोशिश, ऑफ वाले पे लेके ड्राइव किया, आउटफील्ड में 1 रन। सबसे बड़ी बात देखिए, ना कोई चौका लगाए, ना कोई छक्का लगाए, ना कोई डबल हुआ है। 1 को 2, 2 को 3 में तब्दील कैसे करना चाहिए, बुढ़नपुर लायंस के अनास ने कल दिखाया। जिस हिसाब से अनास कल भाग रहा था, जंगल में जो स्फूर्ति से चीता दौड़ता है, बिल्कुल चीते की झड़प से वो दौड़ रहे थे, और ऐसी बल्लेबाजी इस वक्त आज की सुबह देखने नहीं मिली, और उसके पीछे वजह है कसा हुआ क्षेत्र रक्षण। देखिए, अब तक कामाक्षी, बाराबंकी और अंकुर सिंह ने साबित कर दिया है, इलाका भी हमारा, धमाका भी हमारा। इस मरतबा कटर थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर गई, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बीट किया वहां पर बैट्समैन सौरभ यादव को। देखिए, बिल्कुल जो ट्रेडिशनल क्रिकेट है वो खेला जा रहा है। लेफ्टी बैटर के लिए राउंड द विकेट आना, ये हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, 100 क्रिकेट हो, और वही टेनिस क्रिकेट में भी देखने को मिल रहा है। बंटी पटेल रेहान संजरी एंड से मुड़ते हुए इस मरतबा बैकफुट पे गए, टैप किया डीपीश गली में। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, आंखों आंखों में रन पूरा करते हुए। यहाँ पर एक चीज और सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी को ध्यान में रखना होगा, ये मुकाबला 7 ओवर का है, और इसलिए 7 ओवर में उन्हें कम से कम 3 या 4 ओवर ऐसे चाहिए जहां रन डबल डिजिट में आए, 10 से ज्यादा, क्योंकि हमने देखा है ये मैदान पर 60-70 में मैच बचाना मुश्किल है। 7 ओवर में 80, 85, 90 का स्कोर एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा पहले बल्लेबाजी करते हुए। बंटी पटेल क्रीज के कोने से खड़े खड़े हवा में खेला है, विकेट एरिया है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर जाती हुई 6 रन। राकेश कुमार लय में आते हुए, कल जहां रुके थे, कल 56 रनों की भारी भरकम पारी खेली थी, और वही AK-56 तोप अब देखी जा रही है। पहला आक्रामक शॉट बंटी पटेल का हाफ ट्रैकर बॉल, और लाजवाब 6 लगा, तो 6 लगा 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 6 लगा। 15 पे पहुंचा है स्कोर, बिना किसी विकेट के सीआरपीएफ गाजीपुर। फिर पटकी भी गेंद थी, फ्रंट फुट पे पहले ही कमिट हो चुके थे, अंकुर ने लेन को भी खींचा था, उछाल भी था, गेंद बल्ले से लगने के बाद वहीं लुढ़क गई। बहुत ही बढ़िया ऑफ कटर, गति परिवर्तन बहुत अच्छा रखा है बंटी पटेल ने, अंकुर सिंह ने, तारीफ की जाए उतनी कम है, और दोनों इन फॉर्म खिलाड़ी हैं। यहाँ अपना ग्रुप मैच खत्म करके कोलकाता खेलने गए, कोलकाता से वापस उत्तर प्रदेश आए। ये खिलाड़ियों की कमिटमेंट की दाद देनी चाहिए। ये ट्रैवल करते रहते हैं और खेलते रहते हैं और दिल जीतते रहते हैं। ज़हनी तौर से फिटनेस और जिस्मानी तौर की फिटनेस दोनों। अंकुर की कप्तानी की दाद देना होगी। बंटी पटेल को दूसरे ओवर में इसलिए बुलाया कि दबाव रखना चाह रहे हैं। राकेश को बैकफुट पे गए, कट किया, पहले बाउंस पे गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले सेमीफाइनल में रन बने 16 बिना किसी विकेट के सीआरपीएफ गाजीपुर, सामने है कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग।
दूसरा सेमीफाइनल बुरहानपुर लॉयंस और जमा राइडर्स के बीच रहेगा। जमा राइडर्स तैयारी करती हुई, गेंदबाजी में अंकुर सिंह ने खुद को कंटिन्यू रखा गया है। अंकुर चाहते हैं कि इनिशियल ओवर में इतने रन नहीं आए तो बाद के जो गेंदबाज है उन पे दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। अंकुर सिंह हो क्या शॉट खेला है, बेहतरीन हुक शॉट, 6 रन। राकेश कुमार यादव ने मोर्चा खोला है। देखिए, दो में से किसी एक को गरम और एक को नरम होना पड़ेगा, और इस वक्त नरम गरम क्रिकेट चल रहा है। सौरभ यादव जहां गेंदों को धकेल रहे हैं, वहीं पर राकेश कुमार यादव बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते हुए, ये शॉर्ट पिच गेंदी अंकुर सिंह की मानो सुबह सुबह में यहां पर गीला चना और जलेबी परोसी गई थी, और राकेश कुमार यादव ने कहा धन्यवाद अंकुर भैया, हम खा लेते हैं, और सीधा बॉल को हुक कर दिया हयात हेल्थ केयर सेंटर के मंडप के ऊपर से 6 रनों के लिए। और राकेश कुमार यादव अब रिदम में आ चुके हैं। आंखों में आंखें डाल के बात करें अंकुर सिंह के, राकेश कुमार यादव। एक और खेलने की कोशिश, इस मर्तबा देखना है पैरों से टकराई गेंद, लेग बाई। 1 रन और आता है स्कोर में। सीआरपीएफ गाजीपुर का स्कोर पहले सेमीफाइनल में 23 रन बिना किसी विकेट के। अंकुर सिंह को बहुत जल्दी बदलाव लाना पड़ा। बाई दाई जोड़ी होने के वजह से क्षेत्र रक्षण में भी लगातार तब्दीलियां देखने को मिल रही है। विकेट कीपर नोमान, ये भी एक तजुर्बेकार खिलाड़ी है, और अंकुर सिंह, नोमान, बंटी, इन्होंने जरूर कुछ प्लान बनाया होगा इस मुकाबले के लिए। अंकुर सिंह गति परिवर्तन, ओ सुबह सुबह मानो कैच ऐसे छोड़ा कि कोई गेंद नहीं, आग का गोला आ रहा हो, जिस तरह से पकड़ के छोड़ दिया। अभिषेक तैयार नहीं थे, दिवाली के दिन है, ऐसा लगा मानो हाथ में ही सुतली बॉम्ब फटा और गिर गया, और वहां पर अंकुर थोड़ा सा नाराज है, लेकिन देखिए उन्होंने अपने चेहरे पर कोई शिकन आने नहीं दी। ये बड़े खिलाड़ी की निशानी है, जल्दी वापसी करना। अंकुर सिंह, जीवन दान मिला है वहां पर सौरभ को। ओ अच्छी गेंद विकेटों में थी, हल्के हाथों से पुश किया वहां पे। अंकुर सिंह की भी एक खासियत है कि अपना ओवर बिना समय बर्बाद किए करते हैं। नहीं, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने रनअप पर जल्दी जाए। 7 ओवर का मुकाबला है और 30 मिनट में आपको 6 ओवर करने हैं, तो कैप्टन शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। अंकुर सिंह लेफ्ट आर्म राउंडी स्टंप्स, इस मर्तबा गेंद को लॉक कर दिया है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी नीचे। अब की बार कोई गलती नहीं। बिल्कुल यही क्रिकेट है। अंग्रेजी में क्रिकेट में मुहावरा है, कमबैक इज बेटर देन सेटबैक, और मुसैब आलम ने ये कैच को लिया। मुसैब आलम इस टूर्नामेंट में जिस तरह से कैच लेते आ रहे हैं, और दबंग धकवा के अल्तमश जिन्होंने उस दिन 4 कैच लिए थे एक मैच में, विश्वनाथ जाधव जिन्होंने 5 कैच लिए थे, बल्लेबाजी गेंदबाजी के साथ क्षेत्र रक्षण के ये कुछ प्रदर्शन भी टूर्नामेंट की हाईलाइट है। सिद्दीक भाई, एग्जैक्टली मुसेब आलम कल टाइटंस के लिए मुसीबत बन गए थे, जब 5 गेंदों पर पवन केने को 5 सिक्सर जड़े। और यही मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी टेनिस क्रिकेट 1 या 2 शहर का मोहताज नहीं है। यहाँ टैलेंट कूट कूट पर बढ़ा हुआ है। पहले जमाने में खिलाड़ी केवल मुंबई और दिल्ली से आते थे, लेकिन फिर सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जाडेजा, चेतेश्वर पुजारा, शिव सुंदर दास, ये खिलाड़ियों ने दिखाया कि छोटे शहरों से भी खिलाड़ी आ सकते हैं और बड़े मंच पर छा सकते हैं। एग्जैक्टली यही कुछ यूपी क्रिकेट में भी होने जा रहा है, और आजमगढ़ प्रीमियर लीग से यहाँ के खिलाड़ियों को एक उड़ान मिलेगी। अंकुर सिंह विकेट की खुराक के साथ वीआईपी एंड से मुड़ते हुए। मनोहर यादव, ये खिलाड़ी का स्टांस बिल्कुल चंदर बॉल की तरह है। पहली गेंद खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। नैन लड़ जाइए तो मनवा मा कतक वह करी।
बिल्कुल कसक के साथ बल्लेबाजी करते हुए अंकुर सिंह ने एक ही गलती की, मनोहर यादव को उन्होंने थोड़ा कम आंका। उन्होंने सोचा कि मैं उसको लालच देता हूं बड़ा शॉट मारने के लिए। उन्हें कहा पता था मनोहर यादव अपने डगआउट से सेट होकर आए हैं और एमएम स्पोर्ट 70-70 के डगआउट से जब वो नमूदार हुए तो मन में एक मजबूत इरादा लेकर उतरे थे। इस्पाती इरादों के साथ यहां पर सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी की बल्लेबाजी चलती हुई। 3 ओवर में 31वें 1 विकेट गिरा है। अगले 2 ओवर में क्या होगा आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या से। और आखिर के 2 ओवर हमारे मुकामी कमेंटेटर ड्रॉप सीन के हीरो कमेंट्री के अफगान आएंगे। 3 ओवर खत्म हुए। अंकुर सिंह का ये ओवर थोड़ा सा खर्चीला रहा। रियान संजरी पवेलियन छोर से अगले ओवर को प्रारंभ करेंगे बंटी पटेल। पहले ओवर में अंकुर ने 7 दिए, दूसरे ओवर में 15 दिए और 22 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। मुसैब आलम उनकी टीम के ट्रम्प कार्ड रहे जहां तक क्षेत्ररक्षण का सवाल है। नए ओवर को लेकर आएंगे बंटी पटेल रेहान संजरी पवेलियन छोर से। रेहान संजरी साहब की तस्वीर वहां पर हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखता हुआ। इस बार टप्पा खाते ही हरकत ली और आसमान में उसको उड़न खटोला के रूप में भेज दिया। 6 रनों के लिए लगा तो 6। राकेश कुमार यादव को फर्क नहीं पड़ता कि गेंदबाजी अंकुर सिंह कर रहे हैं या बंटी पटेल कर रहे हैं। अपना नेचुरल क्लास दिखाते हुए इस टूर्नामेंट में दीपू लेफ्टी, राकेश कुमार, अंकुर सिंह ऐसे कई बल्लेबाज हैं हमने देखा है जो बहुत निरंतरता के साथ पिछले 2 मैच से हम वहां पर देख रहे हैं। ओसामा पंड्या ये भी अब लय में आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए आज बड़ी पारी खेलना अनिवार्य रहेगा। बंटी पटेल भी वहां पर थोड़ा अपने आप से नाराज है कि मैंने ये 6 क्यों दिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 37 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 25 पर गिरा था, 12 की साझेदारी। इस बार ऑफ कटर बॉल थी, बैकफुट पर गए, शॉट के लिए जगह बनाई और वहां पर रिफर किया गया वाइड के लिए। कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। अभी भी आज बहुत सारी धुंध है, कोहराम मचा हुआ है और आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी की मैं दाद देना चाहूंगा क्योंकि आसान नहीं होता। किसी टूर्नामेंट को मुनकीद करना मतलब बेटी की शादी में जो तैयारियां लगती है सारी चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो वाइड बॉल दिया गया है, जुबान पर शक्कर और सर पर बर्फ रखकर मेहमानों का स्वागत, अतिथियों की आवभगत, बैठने के शामियाने, पिच बनाना, टीमों की एंट्री, कई काम होते हैं। बट एक्सेलेंट जॉब आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी, ईस्ट और वेस्ट एसीसी इज द बेस्ट। इस बार खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, गेंद गई फाइन लेग पर। तो कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी ने अपना रिव्यू खो दिया है इस पारी का। अंदर आती हुई गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी था। कामाक्षी ग्रुप ने एक रिव्यू अपना गवा दिया है। एक और अच्छी बात आपने देखी होगी, लेफ्टी आउट होने पर लेफ्टी को भेजा गया है मनोहर यादव को। वो दबाव हर वक्त रहेगा लेफ्टी राइटी का और लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट ये बिल्कुल चलते रहेगा मैच के दौरान। और स्कोर अभी 39 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। बंटी पटेल रेहान संजरी पवेलियन छोर से सजी हुई फील्डिंग को लेकर तैयार। बढ़िया गेंद। बंटी भी अब थोड़ा गलतियों से सीखते हुए, उन्हें पता है कि बल्लेबाज के स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। जो बल्लेबाज के बलक क्षेत्र है, जो ताकतवर क्षेत्र है, उसकी नाकाबंदी करना लाजमी था। और तुरंत राकेश कुमार यादव वहां जाकर मनोहर से बात करते हुए क्या करना है। देखिए नॉन स्ट्राइकर एंड का जो बल्लेबाज है वो अक्स होता है बल्लेबाज का, और जाकर उन्होंने बताया कि आप क्या सही नहीं कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं।
ओहो हो, आज की सुबह सुबह अनप्लेएबल बॉल, स्नॉटर। क्या गेंद थी, अनप्लेबल बॉल, एक्स्ट्रा बाउंस उसमें था और गेंद हवा में भी स्विंग होके आई थी और टिप्पा खाने के बाद भी काटा बदला था। बंटी पटेल को चाहिए कि ओवर को अच्छे से आगे बढ़ाएं। एक बार और, क्या बात है, अब बल्लेबाज को मानो क्रीज बॉक्स के अंदर नजर कैद कर दिया है। ढूंढते रह जाओगे, ढूंढो ढूंढो रे साजना। ये वो बंटी है जिसने पहले 6 खाया, फिर वाइड डाला, फिर 1 रन और फिर लगातार 3 बिंदी गेंदे। अरे जी, यूपी में आने के बाद एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं सोचता हूँ कि उस बाजार को ढूंढूं, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ओहो, 4 डॉट बॉल, एक से बढ़कर एक नायाब अनप्लेएबल बॉल। बंटी पटेल खुद काफी खुश नजर आ रहे हैं। सर, आप तो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में ढूंढ रहे हैं, मैं ढूंढ रहा हूं नैन लड़ गई है तो मनवामा कसक होई बे करी, आपने जो कहा, तो बिल्कुल वो कसक जो है वो उसको मैं ढूंढ रहा हूं खिलाड़ियों के अंदर, क्योंकि आज आखिरी दिन है, जो कसक के साथ खेलेगा वो आगे बढ़ेगा। देखिए, भोजपुरी गाना है, भले से मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, नैन लड़ जाइए तो मनवामा कतक वे बेकरी। बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग रहा था, फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त थी। बहरहाल यहाँ ज़बरदस्त ओवर, 4 गेंदें तो बंटी पटेल ने ऐसी की है कि बल्लेबाज ये सोच रहे थे कि इस गेंद को किस तरह खेला जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग फ्रॉम इस्माइल ऑफ गुजरात, बंटी पटेल। 4 ओवर 39 रन। भोजपुरी गानों की बॉलीवुड में धूम मची है और एक गाना और याद आ रहा है, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, जो मन्ना डे ने गाना गाया है। मतलब बैटिंग पावर प्ले लिया गया है और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं आजिम खान। उनके पास मुसैब आलम के रूप में एक ऑप्शन और भी है। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया गया है और अंकुर सिंह की कैप्टनशिप, जैसे आपने हमजा शेख की कैप्टनशिप की कल बात की थी बुढ़नपुर लायंस के लिए, जमाल राइडर्स का जहां तक सवाल है, ओसामा पांड्या और सीआरपीएफ गाजीपुर के कैप्टन ज्ञानदेव शर्मा, चारों कैप्टन की आज अग्नि परीक्षा रहेगी। 100 से कम % अगर जो कैप्टन ने दिया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, 100 से ज्यादा देना होगा, 100% पे नहीं चलेगा काम। हमारे तमाम नाजरीन, इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल है जो बड़ी संख्या में अब जुमे के दिन यहाँ आ चुके हैं। बढ़िया गेंद, इस बार राकेश कुमार यादव को समझने नहीं दिया था अजीम ने, बहुत ही लाजवाब टप्पा था। अंकुर सिंह स्टंप से चिपक कर खड़े थे। अंकुर सिंह की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, विकेट कीपर के रूप में भी खड़े रहते हैं, आउटफील्ड में भी खड़े रहते हैं, 360 डिग्री फील्डर है। आप कभी मिड ऑफ पर देखेंगे, कभी मिड ऑन पर देखेंगे, कभी फाइन लेग पर भी देखेंगे, ये उनकी शालीनता है। नोमान को उन्होंने आउटफील्ड में भेजा और अब यहां पर देखिए एक सिली मिड ऑफ लाई गई है, प्रेशर बनाने का प्रयास राकेश कुमार यादव पर। बॉलर अजीम, वीआईपी छोर से ये गेंद, इस बार गेंद की धुन पर बल्ला नाचता हुआ मुझे नजर आया। बिल्कुल, पिछली 6 गेंदों में 1 रन आया है और रनों को रोका गया है, रन्स हैव ड्राइड आउट, सूख गया है रन बनाना, और इसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40। इस ओवर में अजीम ने अच्छी गेंदबाजी की है। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की वजह ही यह है कि अजीम जैसे जो खिलाड़ी हैं, इब्राहिम हैं, मोहम्मद हलीम जैसे खिलाड़ी हैं, इनको मौका मिले, ये आगे आए। और ये नाम हम भूल नहीं पाएंगे सिद्दीक भाई, मोहम्मद हलीम या फिर इब्राहिम, अदनान, असीम खान। अब दायरे के बहुत ज्यादा बाहर थी। सिद्दीक भाई, आपको लग रहा है गेंद हाथ से शायद छूट गई युवा खिलाड़ी के? यस, क्योंकि बॉलिंग एक्शन से ऐसा लगा उनके, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ज्यादा कुछ करने में हाथों पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं।
ओहो, अब देखिए वाइड टर्न, टर्न और बाउंस। जिस तरह एनाकोंडा दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में, अमेज़न के जंगलों में एनाकोंडा अंगड़ाई लेता है, वैसे एनाकोंडा बॉल थी, बिंदी गेंद। कमाल की गेंदबाजी हो रही है और गेंदें उछाल भी प्राप्त कर रही है और बहुत ज्यादा टर्न और बाउंस भी मिल रहा है। इस बार बॉल दायरे के बाहर और वाइड बॉल दी गई और उसे रिफर किया है अंकुर सिंह ने। तुरंत ही अंकुर सिंह ने चैलेंज किया उस वाइट बॉल को। दोस्तों आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया में अलग। पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो चलता हुआ इस वक्त कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी और सीआरपीएफ गाजीपुर के बीच में। दूसरे सेमीफाइनल के लिए दोनों कैप्टन तैयार हैं। इस वक्त लेट मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स में जमाल राइडर्स और बुरहानपुर लायंस। बहुत कड़क मुकाबला रहेगा बुरहानपुर लायंस और जमाल राइडर्स के बीच में। वाइड बॉल दिया गया है, रिव्यू खो दिया है यहां पर अंकुर सिंह ने, दोनों रिव्यू खो दिए हैं। फील्डिंग साइड के रिव्यू अब खत्म हो चुके हैं। चौथा वाइड था इस पारी का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार हुक कर दिया है, शॉर्ट पिच बॉल थी। मनोहर यादव जी ने कल भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, इसके पहले एक अर्धशतक मेरे ख्याल से जमा चुके हैं मनोहर यादव। आज वो दिन है जब तमाम बड़े खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 25 पर गिरा था, 18 की साझेदारी और वीआईपी एंड से अजीम खान तैयार। 5-4 का क्षेत्र रक्षण। इस बार घूम घुमा के खेलने का प्रयास था। तारीफ करनी हो अजीम की। मानो एक छोटा बिशन सिंह बेदी नजर आ रहा है। बेदी के बारे में कहा जाता पोइट्री इन मोशन। जब बेदी गेंदबाजी करते थे तो कमेंटेटर्स कहते थे कि ये घूमती हुई झूमती हुई कविता की तरह जा रहा है। बिल्कुल अजीम के अंदर वो बेदी की छोटी झलक। और यहाँ पर स्कोर 44 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले दौर में रनों का लॉकडाउन लगा है और गेंदों और बल्ले के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है। फुल टॉस बॉल थी यहाँ पर। आसान कैच छोड़ दिया, थोड़ा सा गलती हो गई वरना एक और दरवाजा बंद हो जाता। ओवर समाप्त होता हुआ 5 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर अगर हम देखें तो बना है 45। 9 रन प्रति ओवर की रफ्तार से बल्लेबाजी चलती हुई और अब आखिरी 2 ओवर की अब क्रिकेट बाकी है पहली पारी में। दोनों सेमीफाइनलिस्ट टीम जो है वो टॉस के लिए अब आपको राब्ता करना है हमारे लेट मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स में। एहतेशाम खान भाई के भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। अपने वालिद की नासाज तबीयत की वजह से वो आ नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने मुमरा से अपनी मुबारकबाद भेजी है। लारिफ खान और पूरी टीम को कहा है कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। मेरा ताउन आपके साथ पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और अपने दादाजी के नाम पर ये टॉस बॉक्स उन्होंने बनवाया, लेट मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स। और वहाँ पर जमाल राइडर्स के कैप्टन ओसामा पांड्या और बुरहानपुर लायंस के कैप्टन हमजा भाई प्लेइंग 11 लेकर तशरीफ लाए। आइए चलेंगे अफगान भाई के साथ। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर, वार्म वेलकम एवरीबॉडी। रेहान संजरी छोर तैयार है अभिषेक गेंदबाजी करने के लिए। बहुत ही अच्छी बल्ले गेंदबाजी हुई है और घूम कर खेला गया है। फील्डर वहां पे आ रहे हैं, एक मिलेगा। अब तक कामाक्षी ग्रुप के गेंदबाजों ने चढ़कर गेंदबाजी की है। पूरा टॉस जीतकर जो उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया था अंकुर सिंह, वो सही रहा। और जो जरा सा नमी थी इस विकेट की, उसको मैं देख रहा हूं पूरी तरह से अपने पक्ष में किया है। बंटी पटेल की शानदार आउटस्टैंडिंग कटर देखी गई। आजिब का एक कंजूसी भरावर। अब यहां अभिषेक कर रहे हैं। स्कोर 46 है। एपीएल आजमगढ़ प्रीमियर लीग का आज गोल्डन डे, पहले सीजन का आज ये फाइनल डे है और जुमा का दिन है। एक तरफ सीआरपीएफ वन देवी गाजीपुर है तो दूसरी तरफ कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी है। ये पहला सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल की हार हर किसी को बेचैन बेकरार कर देती है। रेहान संजरी पेविलियन से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। एक मरतबा फिर
घूम कर खेला है, टॉप पेज लगा है, खिलाड़ी आ रहे हैं, कैच फिर ड्रॉप कर दिया गया है, एक मिलेगा। अब नोमान संभाल रहे हैं वहां पर और ये दूसरे की मांग हो रही थी लेकिन नहीं, और ये रन आउट। एक जबरदस्त आघात लगा है यहां पर, एक जबरदस्त आघात। स्कोर 47 है, लेकिन कामाक्षी ग्रुप आज अपने तजुर्बे को दिखा रही है, मजबूत इरादों के साथ ग्राउंड पे आई है। अंकुर सिंह जिनके पास ऐसे टूर्नामेंटों के बहुत तजुर्बे हैं, कोई प्रेशर नहीं है। अब यहां पर आ रहे हैं गिलमान प्रधान, आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्या करेंगे गिलमान, लेकिन सीआरपीएफ वन देवी गाजीपुर फंस चुका है। ओवर नंबर 6 चल रहा है, 7 ओवर का मुकाबला है और अभी मात्र 47 है। तो मैं अपने सीनियर कमेंटेटर, अपने आइडियल कमेंटेटर हरीश पांड्या जी और सिद्दीक भावे सर का स्वागत कर रहा हूं। और आजमगढ़ में कहा जाता है सेमीफाइनल के लिए कि सेमीफाइनल की हार, पुलिस की मार, जामुन की डार, खुला हुआ इनार, गोलियों की बौछार और नौजवानों के एक तरफा प्यार, मलेरिया बुखार बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है सर। आज कौन परेशान होगा ये देखा जाएगा। यहाँ पर नोमान की समय सूचकता की मैं दाद देना चाहूंगा। जैसे कैच छूटा उन्होंने गेंद दी, वहां दी और अंकुर सिंह ने वहां पर रन आउट करवाया। राकेश कुमार यादव प्रतियोगिता में 166 रन बनाकर अब तक खेल रहे हैं और आउट हुए। ये बड़ा विकेट मिला, 26 रन जोड़े उन्होंने, जिसमें 2 6 शामिल थे। जी आज सर हमारे बीच इस टूर्नामेंट के सरप्रस्तों में जिनका नाम सल्लू भाई MIM लीडर भी आने वाले हैं। तैयार, बहुत उम्दा डिलीवरी जो भी आ रहा है एक एक्यूरेट लाइन के साथ, लेकिन बंटी पटेल ने जो 4 गेंदों को डॉट करवाया था, वहीं से इस बैटिंग बल्लेबाजों का मोराल डाउन हुआ है और कामाक्षी ग्रुप चढ़ के गेंदबाजी कर रहा है। नहीं, और अच्छा टप्पा करना ही पड़ेगा क्योंकि इस वक्त स्कोर को पूरी तरह से दबा दिया गया है और हो सकता है कि 7 ओवर की समाप्ति पर 75 के आसपास हमें स्कोर देखने मिले। 47 है, बहुत उम्दा। अब सर कहां 75 रन दिखता नजर आ रहा है, 47 बना है, इसके बाद सिर्फ एक ओवर आना शेष है। ये तो 60-65 तक बना ले तो भी वनडे भी अपने आप को बेहतर समझेगी। कामाक्षी ग्रुप वेल बॉलिंग, शाबाश, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म रहा है गेंदबाजों का। यहां पर जो टॉस जीतकर एडवांटेज मिला, 2 कैच छूटे हैं, अगर वो कैच दोनों हुए होते तो ये अब तक 35 होता, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ गेम है, इसको भुलाकर बाहर गेंद वाइड का इशारा। स्कोर 48-48। अभिषेक गेंदबाजी कर रहे हैं और आज APL सीजन 1 का आखिरी दिन, फाइनल डे, बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ा है। लेट मुंशी हनीफ, टॉस बॉक्स में टॉस होता रहा। एहतशाम पप्पू साहब का बहुत बड़ा योगदान, अहले आजमगढ़ का योगदान से टूर्नामेंट आगे बढ़ा है। फिर यहां पर खेला है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ स्कोर 54 और सल्लू उर्फ आसिफ भाई MIM लीडर गुलवान नसीरपुर भी आ जाने वाले हैं। नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल बेचैनी के साथ आपका वेलकम कर रहा है। ये कह रहा है कि कोई एक तो है बीमार ना हो, अगर आप बीमार हो रहे हैं तो जरूर एक बार नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी का आप साथ जुड़ जाएंगे तो आपको एक अच्छी सेहत मिलेगी। हयात हेल्थ केयर, MM स्पोर्ट, ये तमाम लोग आपका वेलकम कर रहे हैं। फिर यहां पर ड्राइव किया, कारपेट के सहारे फील्डर मौजूद है वहां पे। आजिब एक मिलेगा, दूसरे की मांग थी लेकिन मना किया गया और ये 1 रन, क्या जबरदस्त। अब वहां पर फिर रन लेने की कोशिश की जा रही है, रन लिया गया जहां 1 था 2, स्कोर इसी 2 के साथ जा पहुंचा है 56-56। यहाँ पर बहुत अच्छी शुरुआत मनोहर यादव दे चुके हैं और मनोहर यादव अगर आखिरी ओवर में एक 15-17 रन और बना लेते हैं तो 75 मुमकिन है। हालांकि जब 6 ओवर का खेल समाप्त हो रहा है तो कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 56, 2 विकेट के नुकसान पर। अफगान भाई पहले 2 ओवर में 16 है, उसके बाद वाले 2 ओवर में 23 आए और उसके बाद वाले 2 ओवर में 17 रन आए हैं। आखिरी ओवर में अगर 15 के आसपास 15 से 20 रन आते हैं तो बात बनेगी। लेकिन यस, आज जो गेंदबाजी की है अंकुर सिंह, बंटी पटेल, उसके बाद अजीब खान, अभिषेक, सबकी तारीफ करनी होगी। गौरतलब है कि 4 ओवर ऐसे हैं जिसमें 10 से कम रन आए। पहले ओवर में 7, दूसरे ओवर में 9, चौथे ओवर में 8 और 5वें ओवर में 5। 2 ओवर ऐसे हैं जिसमें 10 से ज्यादा रन आए, ओवर नंबर 3 में 15 और ओवर नंबर 6 में 11। सारिम काका गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर है।
इस वर्क को संभालना चाहेगी दोनों टीम। जो संभालेगी काम उसका बनने वाला है। ये सेमीफाइनल है, जो जीतेगा पहुंच जाएंगे अपने सपनों की दुनिया में। और सपना ये ख्वाब किसे कहते हैं? जो हम सो के देखते हैं? नहीं, सपना ये ख्वाब वो है जो हमें सोने नहीं देता है। इस एपीएल में 6 महीने से लोगों ने सोया नहीं है, टीम को सेटअप किया है, टीम को बनाया है। जो इस मुकाबले को जीतेगा उसका सपना साकार होगा। जो हार कर जाएगा 2-3 दिन तक तड़पेगा, बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा, ना तो आंखों में नींद आएगी ना दिल में करार आएगा। जो जीत कर जाएगा वो बिल्कुल सरताज बन जाएगा आजमगढ़ का। सारिम काका वीआईपी स्टैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर है 56। में अहले कमेटी का शुक्रिया, अहले आजमगढ़ का शुक्रिया अदा कर रहा है एपीएल आजमगढ़ प्रीमियम लीग, जो ये बड़ी मेहनत के साथ, बहुत मेहनत के साथ सजाया गया, तब जाके ये टूर्नामेंट आज आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने देखा जा रहा है। फिर यहां पर सारिम काका क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं। बीट किया पहले गेंद, बची हुई 5 गेंदों पर कहां तक पहुंचेगी सीआरपीएफ वन देवी गाजीपुर। तो आजमगढ़ प्रीमियर लीग के सहयोग करने वालों का शुक्रिया। आप लोगों ने जिस तरह से दिल खोल कर सहयोग किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ऊंचा स्ट्रोक खेला है, गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है। तो मैं देख रहा हूं कि सिटी कुर्ता के ओनर भी आ चुके हैं। खूबसूरत ये स्ट्रोक लगा है, बहुत अच्छा ताउन रहा है, लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग रहा। अहमद जमाल साहब, जमाल राइडर टीम के जो ओनर हैं, आमिना ज्वेलर्स, हलीम शेख, ये तीनों जो हैं, सिटी कुर्ता, कलीम संजरी और अहमद जमाल साहब, जमाल राइडर, आमिना शेख, ये हलीम शेख, आमिना ज्वेलर्स, ये तीनों, उनकी भी टीम दूसरा सेमीफाइनल खेलने वाली है। स्कोर यहां पर है 62 रन। गेंदबाजी अच्छी है, गेंदबाजी सीआरपीएफ की अच्छी है। उनके पास अंकित कालकी हैं, उनके पास सलीम हैं, उनके पास आप देख रहे हैं कि ज्ञानेश्वर हैं, उनके पास गेंदबाजी है, लेकिन कुछ तो रन बनाने पड़ेंगे दोस्त। डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। आप लोग गेंद कहां है उसको ढूंढ रहे हैं, तो बेहतरीन, आज जुमा का दिन है, पहले से लोग तैयार होकर आ गए हैं, नहाकर साफ सुथरे पाक साफ होकर ग्राउंड पे आए हैं। मुशर्रफ भाई भी देखे जा रहे हैं, जाहिद भाई नसीरपुर भी देखे जा रहे हैं। लेकिन एक मातम का माहौल कल मैंने देखा नसीरपुर गांव में, जब टीम उनकी हारी थी, एक मानो ब्लैक दिवस मना रहा था नसीरपुर। लेकिन मैंने कहा ये तो पार्ट्स ऑफ गेम है, हार और जीत तो दोनों लगी रहती है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, इसकी परवाह ना करें। तैयार है, बड़ा खूबसूरत ड्राइव किया, गेंद आ रही है बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। दीपावली सामने है और उसकी आतिशबाजियां देखने को मिल रही है। 10 रन इस ओवर में अब तक बटोर चुकी है टीम, 3 गेंदों का सामना हुआ है। स्कोर 66। देखिए अब 75 नजर आ रहा है। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावला की फेमस है चिक्की, मुंबई का वड़ा पाव और लोनावला की फेमस है चिक्की। गिलमान प्रधान और मनोहर यादव के सामने गेंदबाजी पड़ गई है फीकी। रिवर्स स्वीप का चक्कर था, लेकिन इस मर्तबा कामयाब नहीं हुए और बीट कर बैठे। तो एक एक रन की बड़ी कीमत है। इस रन में आप लोगों को एक गेंद अगर जाया करेंगे तो मानो आपने कुछ अपने आप को कमजोर किया है। सारिम काका लेग स्टिक पे गेंद थी, घूम कर खेला है, फिर गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो गिलमान प्रधान अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। स्कोर इसी 6 के साथ जब पहुंचा है 72 रन, 72। बहुत ही खराब हाफ ट्रैकर बॉल थी। सारिम काका जिसकी गेंदों पर गिलमान प्रधान ने अपने बल्ले से डाला है डाका और यहां पर 6 रन ले लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है अब 72 पर और 75 अब नजर आ रहा है, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये आखिरी गेंद पर अगर चौका छक्का आ जाता है स्कोर को मजबूती मिलेगी। हालांकि 7 ओवर के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये फाइटिंग स्कोर है, क्योंकि सीआरपीएफ गाजीपुर के पास ज्ञानदेव शर्मा है, मोहम्मद हलीम है, उनके पास काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, अंकित सिंह कल्की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैच अच्छे स्टैंडर्ड का होगा। आखिरी
2 ओवर में प्लॉट एक बार फिर से खो दिया है कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी ने। स्कोर 72 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बहुत ही प्यारी बल्लेबाजी इस ओवर में हो रही है। अपने खेल पे ध्यान दें और खेल 72 बन चुका है। गिलमान प्रधान ने जरा सा आगे पीछे होकर ये बताया था और वहीं सारिम काका ने हाफ ट्रेकर कर दिया था, उसको इसको लिख के सर के ऊपर से उठा दिया था 6 रनों के लिए। स्कोर 72 है और अभी एक गेंद संभवतः बाकी है। इस इनिंग की आखिरी गेंद लेके तैयार होंगे सारिम काका, अपने आप को दुरुस्त कर रहे हैं, बॉल को दुरुस्त किया जा रहा है और ये सीआरपीएफ वन देवी गाजीपुर अब कुछ ठीक ठाक बल्लेबाजी कर ली है। अच्छी उनके पास अच्छी गेंदबाजी है सीआरपीएफ वन देवी गाजीपुर के पास। क्या दिलकश ये मुकाबला है, बहुत ही ये बॉल 70 की बॉल से ये मुकाबला खेला जा रहा है और इसमें रेहान सेंचुरी पेविलियन बनाया गया। नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल हर्रा की चुनगी का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जलवा है और सल्लू भाई भी आने वाले हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया और सारी चीज को लोग दुरुस्त कर रहे हैं। इस एपीएल जो बगवार ग्राउंड पे खेला जा रहा है, ये सौभाग्य है आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश का कि इस बगवार ग्राउंड को चुना है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत ही चारों तरफ से कहीं से कोई इस ग्राउंड पे कमी नहीं है और बहुत प्यारा ये गेम खेल चल रहा है। बंटी पटेल ने अपनी सनसनी गेंद से दोस्त संभाला है। सारिम काका आखिरी गेंद लेकर तैयार इनिंग की और फिर ड्राइव किया कारपेट के सहारे। फील्डर मोहसेब आलम मौजूद हैं जो बेहतरीन फील्डरों में उनका शुमार होता है और ये रन आउट। तो यहां पर 73 बना है, 74 का टारगेट दिया है। 7 ओवरों में 74 का टारगेट दिया है। ये ना तो कोई बहुत बड़ा टारगेट है ना कोई छोटा है, एक ऐसा टारगेट है जिस पे बल्लेबाज और बल्लेबाज सोचने मजबूर होंगे कि तेज बल्लेबाजी की जाए या रुक के की जाए। लेकिन अंकुर सिंह को यह सब मालूम है, उनके साथ नोमान शेख हैं, उनके पास भी 20 सालों का तजर्बा है। तो अगर इस चीज को वो लोग हैंडल कर लेंगे तो काम बनेगा। 3,33,000 फर्स्ट प्राइज है, 2,22,222 सेकंड प्राइज है, थर्ड एंड फोर्थ प्राइज 55,000 है। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, इमर्जिंग प्लेयर को 11,000 का इनाम दिया जाएगा। सीरीज मोटर बाइक है, बहुत बड़ी धनराशि वाला यह टूर्नामेंट है जिसे एपीएल कहा गया है। हर आजमगढ़ वालों का यह टूर्नामेंट है, हर आजमगढ़ वासियों का यह टूर्नामेंट है, हर आजमगढ़ वासियों का सर फख्र से ऊपर करने वाला यह टूर्नामेंट है। टॉस बॉक्स में मैं देख रहा हूं जुड़ रहे हैं। आइए मैं लारिफ खान से गुजारिश करूंगा टॉस के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। हम इस वक्त खड़े हैं लेट मुंशी हनीफ स्टैंड में और हमारे कैमरामैन से गुजारिश है हमारे साथ जुड़ जाएं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी द्वारा आयोजित आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 दूसरे सेमीफाइनल में मुकाबला होगा जमाल राइडर और एसीसी कहा गया बुढ़नपुर लायंस ने। टॉस किया गया लारिफ खान द्वारा, उनके साथ थे साकिब भाई गुलवा गौरी। आइए बुढ़नपुर लायंस के कैप्टन हमजा भाई। हमजा भाई, टॉस जीतने के लिए मुबारकबाद, क्या डिसीजन लिया और क्यों? बॉलिंग करने का फैसला लिया क्योंकि हमने टूर्नामेंट में जितने भी मैच जीते हैं, चेस करते हुए जीते हैं, तो उस हिसाब से हमने बॉलिंग करने का फैसला किया। और टीम में कोई चेंजेस रहेंगे? नहीं, कल का लास्ट रिक्वायर्ड सेम टीम है मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल राइडर्स, खैर आपकी जब बैटिंग आएगी तब तक हो सकता है थोड़ा सूरज और ऊपर आए, मैदान थोड़ा और सूख जाए, नमी कम हो। पहले बैटिंग करते हुए किस तरह का अप्रोच रहेगा आपका? जो हमेशा का नेचुरल क्रिकेट है वो टीम खेलेगी या बुढ़नपुर लायंस के लिए कोई स्पेशल प्लानिंग करते हुए बल्लेबाजी होगी? नहीं, कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं है। हम लोग नेचुरल अपना गेम खेलेंगे, साथ में 80-90 करेंगे स्कोर, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। और आपकी टीम में कोई चेंजेस? चेंज शायद एक है, मैं अभी कंफर्म करके बता दूँ। कोई बात नहीं। बुढ़नपुर लायंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, लेकिन आइए हम शुक्रिया अदा करते हैं टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, शाहनवाज शेरवानी साहब, साकिब भाई गुलवा गौरी मेरे साथ खड़े हैं, साकिब भाई जयराजपुर, लारिफ खान किंग मेकर, आसिफ भाई, अफगान भाई कमेंटेटर, कशीफ भाई अलमरमर टाइल्स, अयाज शेख, अल्फा स्टोर्स, अकबर भाई, कासिम बाबू, शादाब शेरवानी, अब्दुल्ला शेख जयराजपुर, इनका विशेष आभार।
हम आभारी है रेहान संजरी साहब, डायरेक्टर पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून, अबू सईद खान एचएम ग्रीन सिटी डायरेक्टर लखनऊ, मुन्ना भाई गद्दूपुर सऊदी अरेबिया, आफ्ताब खान मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, एहतेशाम खान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मुमरा, हाजी नुमान खान कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भिवंडी, शाहिद सिंदूरी बीएसपी कैंडिडेट दीदारगंज, शहजाद आजमी चकियां दुबई जो लाइव देख रहे हैं, आसिफ सल्लू एमआईएम कैंडिडेट, शाहिद खान सोशल वर्कर नसीरपुर, अमीना ज्वेलर्स सराई मीर, हलीम प्रिंस जो हमारे बीच आ चुके हैं, जमाल ट्रैवल्स अहमद जमाल साहब लोनियादी आ चुके हैं, नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल जिसकी नुमाइंदगी करते हुए साकिब भाई गुलवा गौरी, गोदरेज पार्क प्लस इसरार खान, दिल्ली दरबार फुलपुर, सिटी मार्बल, वेलकम ढाबा साजिद खान, 70-70 स्पोर्ट्स तारिफ सैयद, नियाज खान नसीरपुर, एमएम स्पोर्ट्स 70-70 आजमगढ़, नोमान शेख कतराता, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा हार्ट सेंटर मोहम्मदपुर फुलपुर, डायरेक्टर डॉक्टर फैजल खान टेंट हाउस, शाहबाज खान नसीरपुर, टेस्टी बाइट बिलरियागंज, मन्नन प्रधान कतराता, कोका कोला चार्ज बाय थम्स अप अपना चार्जर लिया क्या, अल्फा क्लॉथ स्टोर आजमगढ़, बिलाल इलेक्ट्रिक बिलरियागंज, कलीम शेख साहब, वसी भाई गुलवा जिनके ताउन से ये ग्राउंड पर आने का रोड और सड़क का निर्माण हो पाया, थैंक यू सो मच वसी भाई गुलवा, फाद भाई मंगरावा, कशीफ हसनैन सोनवारा, केकेआर खान खालिद रफीक केकेआर रेस्टोरेंट जिद्दा, सिटी कुर्ता सराई मीर, आसिफ खान जयराजपुर, एपोलो टायर्स मुमरा, वसीम खान गुलवा, अलमरमर टाइल्स बिलरियागंज, साकिब अहमद बिलरियागंज, एबी फिश एंड फिट, ट्रिपल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ट्रैवल्स दिल्ली, सहारा हॉस्पिटल सराई मीर, हयात हेल्थ केयर सेंटर, जमाल हम्माद साहब सऊदी अरेबिया में हैं और हो सकता है आज वो हमारे साथ उपस्थित हों, औरंगजेब भाई अलाउद्दीन पट्टी, राजिक प्रधान कजरा कोल, आदिल शेख आजमी अनवाक सऊदी अरेबिया और मुस्तफ़ा बिंद्रा बाजार, और मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर है क्योर वेल पैथोलॉजी सेंटर, यूनियन बैंक के सामने वाली गली, जहां पर आप अपना ब्लड टेस्ट, कैंसर टेस्ट और भी कई एडवांस टेस्ट वाजिब दाम पर करा सकते हैं। तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हुए सीधा लिए चलते हैं आपको कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया, धन्यवाद हरीश। आइए दोस्तों लौट चलते हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग की अद्भुत दुनिया में, जहां पर पहला सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है। कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी के सामने 74 का लक्ष्य है। दोनों ओपनर्स रिकॉग्नाइज ओपनर मुसेब आलम और अंकुर सिंह मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं इस वक्त। अबू साद स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, बेहतरीन मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीआरपीएफ गाजीपुर वन देवी ने 73 रन स्कोर किए हैं, 74 का जवाब मांगा है। कामाक्षी ग्रुप की बात की जाए तो अच्छे बल्लेबाजों से सजी है टीम, चाहे आप ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को देख ले या फिर मध्य क्रम के बल्लेबाज, बेहतरीन टीम है और मुकाबला बड़ा होने वाला है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए रेहान संजरी एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है ज्ञानेश्वर शर्मा को, जो कि ऑल इंडिया आइकॉन है। सामना करेंगे अंकुर सिंह। अंकुर सिंह अभी तक आजमगढ़ प्रीमियर लीग में 2 अर्धशतक जमा चुके। फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्डमैन, एक डीपिच गली है, एक्स्ट्रा कवर को सर्कल में बुलाया गया है, मिड ऑफ थोड़ा वाइडिश रखा गया है। एक खिलाड़ी मिड विकेट सर्कल पे एक शॉर्ट फाइन लेके है और लगभग एक खिलाड़ी बहुत ही फाइन शॉर्ट थर्डमैन। डीप कवर में एक खिलाड़ी है फ्लैशी कट शॉट को झेलने के लिए। अंकुर सिंह फोकस खिलाड़ी रहे अब तक आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। 150 के ऊपर रन बनाए, 163 रन बनाए। पहली गेंद स्विच हिट की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। शानदार गेंद थी और लंबी हिट के साथ शुरुआत करने की एक मानसिकता यहां पर दिखी। असफल रहे बल्लेबाज अंकुर सिंह। ज्ञानेश्वर शर्मा रेहान संजरी एंड से मुड़ते हुए, रेहान संजरी पवेलियन बनाया गया जहां से दर्शकों को मैच देखने का अलग ही मजा है। ज्ञानेश्वर शर्मा राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए, इस मरतबा विकेटों में गेंद थी, हल्के हाथों से पुश किया, रन लेना चाहते थे मुसेब आलम,
मना किया। बढ़िया गेंद। सुबह का जो नमी रहता है, मॉइस्चर रहता है, उसका लाभ गेंदबाजों ने अच्छा उठाया है। बिल्कुल। और जिस तरह से आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल शाहपुर टाइटंस के खिलाफ अंतिम के 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्का लगाया था मुसाइब आलम, उसी पारी की दरकार और उम्मीदें आज भी है। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। हालांकि कदमों का इस्तेमाल किया था, पिच के नीचे उतर आए थे, निकल के मारा था, शॉर्ट बल्ली की जड़ से टकराया मिड ऑफ पे, पहला रन आता हुआ कामाक्षी ग्रुप के खाते में। और पहले पारी की बात की जाए तो सर चौथे ओवर की अंतिम 4 गेंद और 5वें ओवर की पहली गेंद जो 5 डॉट बोले हुई हैं, कहीं ना कहीं उसको मिस कर रहा है इस वक्त सीआरपीएफ गाजीपुर वन देवी। अगला सेमीफाइनल मुकाबला जहां बुढ़नपुर लॉयंस ने टॉस जीता है और जमाल टाइगर्स को बल्लेबाजी की दावत दी। सामने की ओर से आते हुए बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पहले ओवर में टाइडी बॉलिंग, कोई रूम नहीं दिया है बल्लेबाजों को, बिल्कुल स्टंप्स और उसके करीब गेंदों को रखा है ज्ञानेश्वर शर्मा ने। यह बताता है कि बॉलिंग का ज्ञान बहुत ज्यादा है। इस मरतबा टोक रेशर थी, फ्लाई स्लिप पे गेंद पहुंची, 1 रन आता हुआ स्कोर में। जोखिम भरा रन था और 1 रन और जुड़ता हुआ, इस 1 रन के साथ रनों की कुल संख्या 2। मैदान में आज दर्शक की बात की जाए तो फाइनल डे है, दर्शक एक अच्छी खासी तादाद में देखे जा रहे हैं। और लाइव कवरेज में एक मशहूर कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार, जिनका ताल्लुक बिहार से है, इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग को देख रहे हैं, मुबारकबाद दी है। बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका। क्या बॉलिंग हो रही है, इससे अच्छी बॉलिंग क्या हो सकती है। और अभी ये तक बताया सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी ने, सर तू डाल डाल तो मैं पात पात, लाजवाब गेंदबाजी। बिल्कुल, हरीश पंड्या ने ज़रूर कहा था कि जो सीआरपीएफ गाजीपुर टीम है, ये लगभग वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, ये टीम चुपके से आगे निकल गई। और कल जो न्यूजीलैंड ने मैच जीता है, वहाँ से ये तय हो गया है कि लगभग न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में 4 नंबर पे है, क्योंकि इंग्लैंड अगर पहले बल्लेबाजी करती है और जो रन बनाती है, वो रन पाकिस्तान को 22 गेंदों में बनाने होंगे। और पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करती है तो इंग्लैंड को 288 रनों से हराना पड़ेगा, लगभग इम्पॉसिबल। वहीं कहानी दौड़ाई जा रही है, 2019 में भी सेमीफाइनल हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ज्ञानेश्वर शर्मा कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। सुई जेट की कोशिश, आप परेशान किया है, घी ना सीधी उंगली से निकल रहा है, ना टेढ़ा कर रहे हैं तो निकल रहा है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा जवाब। इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग में अगर सीआरपीएफ गाजीपुर वन देवी को देखा जाए तो अभी तक जितने भी मुकाबले खेले हैं, चेस करके जीता है। ज्ञानेश्वर शर्मा रेहान संजरी एंड से आते हुए इस मरतबा खड़े खड़े ड्राइव किया, मिड ऑफ पे कोई रन नहीं। एक्सेलेंट ओवर टर्न फ्रॉम ज्ञानेश्वर शर्मा, तालियां होना चाहिए। मैंडेटरी पावर प्ले में सिर्फ 2 रन, और जहां 7 ओवर में 74 चाहिए थे, अब इक्वेशन ये है कि सीधा 12 का आस्किंग रन रेट है और 6 ओवर में चाहिए 72। अगले दौर के लिए, क्योंकि आज बिजी शेड्यूल है और फाइनल में तमाम साथी कमेंटेटर हो सकता है कि उनको मौका कम मिले या ना मिले, अगले दौर के लिए अबू साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे सर। तो पहले ओवर के बाद स्कोर कार्ड पर रनों की कुल संख्या 2, 74 रन का पीछा करती हुई कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी। अंकित कालकी मुख्य गेंदबाज। ऑल इंडिया कौन है? और इस बार सिर्फ लाइन में गेंद की बल्ले को लाया था, बहुत ही रक्षात्मक शॉट,
बल्लेबाज मुसैब आलम के बल्ले से निकला है गेंद एक्स्ट्रा कवर के बाहर 4 रन और इस 4 के साथ स्कोर कार्ड 6। Effortless stroke played by Musab Alam. Slightly up in the air, slightly upish, but find the gap very well. Not a power back stroke, but gets to the boundary. डीप एक्स्ट्रा कवर पूरी तरह से खाली था, एक्स्ट्रा कवर का फिल्टर इन फील्ड था, देखा पूरी तरह से मौका था पिछली गेंद पर जिस तरह से रक्षात्मक शॉट लगा, इस बार आप स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आया है अंपायर का और अंकित काल्की ने इस फैसले के साथ नहीं बल्कि फैसले के खिलाफ रिव्यू मांगा है गेंदबाज अंकित काल्की ने। देखिए अंकित काल्की का जो बॉलिंग एक्शन है, उनका जो रिस्ट आता है, ऐसे लगता है कि उनकी गेंदें टिप्पा खाने के बाद अंदर की जानिब आती है। अंपायर के फैसले को चैलेंज किया है वहाँ पर। अंपायर का फैसला जो है कि गेंद बहुत दूर गई है बल्लेबाज से। हमारे तीसरे अंपायर संजीव सिंह साहब इस वक्त डिसीजन पेंडिंग में है और दोनों टीमों की धड़कनें तेज हो रही हैं। बड़ा मुकाबला नॉकआउट का मैदान पर रोज की तरह आज तेज धूप नहीं खिली है, आसमान पर बादल देखे जा रहे हैं और शबनम की बूंदें कहीं ना कहीं इस ग्राउंड की शोभा को बढ़ाते हुए पूरे भारत में इसका लाइव टेलीकास्ट, भारत के कोने कोने से लोग जुड़े इस टूर्नामेंट के साथ। देखिए अबू साथ आपने देखा कि एक कॉर्नर मीटिंग फिर से हुई है टीम की। देखना है कि तीसरे अंपायर क्या निर्णय आता है। फेयर डिलीवरी पहला रिव्यू खो दिया है यहाँ पर। देखिए अंकित काल्की का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, ऑल इंडिया ओपन है, उन्होंने तुरंत ही चैलेंज किया ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को। अगली गेंद क्या गजब की स्विंग होती हुई, वेरिएशन के साथ अंकित काल्की की गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ मुंह होती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में। आज सुबह से देख रहे हैं हम कि गेंदबाजी बहुत लाजवाब हो रही है। बंटी पटेल हो, अंकुर सिंह हो, अंकित हो या फिर शर्मा हो। और इस बार खोद कर निकाला इस शॉट को, जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन का। इस 1 रन के साथ रनों की कुल संख्या 74 के जवाब में 7। मौसम पूरी तरह से नम और उसका फायदा गेंदबाजों को मिलता हुआ। हल्के हाथों से चिप किया था। लग रहा है कि पहला सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ही गुल खिलाएगा। और अगर बात की जाए कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी की, गुजरात की खुशबू, यूपी की शान और आजमगढ़ का नायाब गौहर, सारे खिलाड़ियों को एक ही टीम में देखा जा रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग। अंकुर सिंह जैसे बैट्समैन को बांधे रखा है। बॉलिंग हैज बीन आउटस्टैंडिंग एंड फील्डिंग हैज बीन टेरिफिक। और इस बार अंकुर सिंह के लिए हाथ खोलने का मौका था, बैकफुट पर गए और सीधे बल्ले से खेला गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन मिल जाएंगे। चमाट शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक ऑन द राइज। अंकुर सिंह ने भी कहा सब बंदियां चल गई, रन बंदी नहीं चलेगी। बिल्कुल, जो है जिस तरह से बड़ा नाम है पूरे भारत में जाना जाता है टेनिस क्रिकेट में, अंकुर सिंह अपने नाम के साथ खड़े उतरे। लगातार अंकित काल्की ने अभी तक जितने गेंदें डिलीवर की है बांधे रखा, लेकिन इस बार अंकुर सिंह ने अपने आप को बैकफुट पर खींचा और खींचकर खेला इस शॉट को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। पारी का पहला छक्का बल्लेबाज अंकुर सिंह के बल्ले से निकलता हुआ। पावर प्ले में कोटा जो कंप्लीट हुआ है 13 रन आए और 2 ओवर की समाप्ति पे 13 बचे हुए 5 ओवर में 61 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो अब काफी ऊपर जा चुका है। और कंटिन्यू गेंदबाजी मैं देख रहा हूं, ज्ञानेश्वर शर्मा बेहतरीन गेंदबाज। दोनों टीमों की रणनीति साफ है, दोनों ऑल इंडिया अकाउंट से गेंदबाजी कराई जा रही। बिल्कुल सही है, दोनों टीमें इस मुकाबले को जीत करके सेमीफाइनल में पहुंचने का प्रयास कर रही हैं।
ज्ञानेश्वर शर्मा रेहान संजरी पवेलियन छोर से तैयार हो रहे हैं मुसैब के लिए। और इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइट का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ रनों की कुल संख्या जा पहुंची। थोड़ा लालच में आ गए थे ज्ञानेश्वर शर्मा, क्योंकि मुसेब आलम ने लेग स्टंप खुला रखा था और उसको बोल्ड करना चाह रहे थे अराउंड द लेग्स। बिल्कुल, ये वाइट कहीं ना कहीं ज्ञानेश्वर शर्मा की एक राजनीति भी हो सकती है। और इस बार क्या लाजवाब शॉट है, पीछे फील्डर है, एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। और इस एक रन के साथ स्कोर 15-74 का पीछा करती हुई मैदान पर तेज धूप नहीं है, बिल्कुल क्रिकेट के वाता। आजमगढ़ की फजाओं में अभी भी हम शबनम पॉज देख रहे हैं। उसका कारण है कि सुबह से हम देख रहे हैं कि अगर गेंदबाजी आपकी सही जगह पर है तो उसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल फैक्ट डिलीवरी होती हुई और अनुकूल क्रिकेट की ये वातावरण है। तमाम दर्शकों का आजमगढ़ प्रीमियर लीग स्वागत कर रहा है। ज्ञानेश्वर शर्मा रेहान संजरी पवेलियन छोर से तैयार हो रहे हैं। और इस बार पटती हुई शॉट गेंद थी, हवा में खेला है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, एक सफलता मिलती हुई ज्ञानेश्वर शर्मा की। और बड़ा विकेट मिला है अंकुर सिंह की शक्ल में, कुछ खास नहीं कर पाए उन्होंने। देखिए, मात्र एक छक्का लगाया अपनी छोटी सी पारी में, अब वापस जा रहे हैं। एक बात तो है कि गेंदें थोड़ी रुक कर आ रही है, जो ऐसी क्लाइमेट है। आपने देखा, हालांकि शॉर्ट पिच गेंद थी, अंकुर सिंह ने अपने आप को पोजीशन भी किया था, लेकिन बाहर नहीं मार पाए। ये लक्ष्य इतना आसान नहीं रहेगा अंकुर सिंह के आउट होने के बाद। नोमान शेख हार्ड हिटिंग बैट्समैन 1 डाउन पोजीशन पे आए हैं। इस वक्त सूरत से हर्ष देसाई आजमगढ़ प्रीमियर लीग को देख रहे हैं और उन्होंने इस कप के लिए मुबारकबाद दी है। 10 PL में हमारे बहुत करीबी दोस्त रहे। और साथ ही साथ जमशेद खान जो भिवंडी से हमारे काबिल दोस्त हैं, वो भी आजमगढ़ प्रीमियर लीग को देख रहे हैं। वो तो लगभग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरह है, उनका भी स्वागत है। कॉरपोरेटर हाशिम खान नोमान सेठ के जो फर्जंद है, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। लेकिन यहाँ पे कठिनाइयाँ बढ़ती भी कामाक्षी ग्रुप के लिए और 1 डाउन पोजीशन पे पिंच हिटिंग के लिए नोमान शेख को भेजा है। 6 गेंदों का सामना अभी तक किया है इस पारी में मुस्तैब आलम ने, और 6 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक वाले छोर पर मौजूद। पहली बार सामना किया नोमान शेख ने इस मुकाबले में, और इस बार खेला है, गेंद फील्ड कर ली गई डिप पॉइंट बाउंड्री पर, और जब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन मुकम्मल कर लिया, इस 2 के साथ स्कोर कार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 17-74 के जवाब में। यहां से अगर 15 से 20 रनों की पार्टनरशिप बिल्ट नहीं हुई सर, तो फिर मुश्किल में फंसेगी कामाक्षी ग्रुप। देखिए, मैच की इस स्टेज की अगर हम आकलन करते कंपैरिजन, तो मेरा अपना मानना है कि CRPF का पलड़ा भारी है। एक और खूबसूरत डिलीवरी डार्ट होते हुए नोमान शेख, नीचे रहती हुई ये गेंद पहुंची विकेट कीपर के दास्तान में। बल्लेबाज नोमान पूरी तरह से कमेंट थे, देखा ज्ञानेश्वर शर्मा ने गेंद गति में परिवर्तन किया, और जो बल्लेबाज नोमान ने एक अनुमान लगाया था उससे कहीं कम उछाल लेती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में बैठ गई थी गेंद। बकौल हरीश पंड्या सबमरीन गेंद, और नोमान के फुटवर्क नहीं था, जगह से खड़े खड़े खेले थे। हालांकि गेंद इतनी दूर नहीं थी। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। और इस बार पटकी हुई शॉट गेंद थी, घूम कर खेला है। मात्र 1 रन के साथ संतुष्ट होना होगा दोनों बल्लेबाजों को, और इस 1 रन के साथ रनों की कुल संख्या 18। रेहान संजरी एंड से जब गेंदबाजी हो रही है तो अधिकांश मदद है वहां पर गेंदों को,
एक बात तो है कि बड़े स्ट्रोक आ नहीं रहे और धीरे धीरे ये मैच फंसता हुआ जा रहा है। इस गांठ की जो गिरे है और कसी हुई है। शानदार गेंदबाजी अब तक सीआरपीएफ गाजीपुर 1 देवी की जानिब से, और इस बार पैरों पर गेंद थी, सफल किए करते हुए आगे की तरफ आए और कलाइयों के साथ मोड़ा है गेंद को। 1 रन मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड 19। 3 ओवर के बाद 19, 1 विकेट के नुकसान पर। आगे क्या कुछ होता है ये बताने के लिए 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 19। मैच बहुत ही गर्म हो चुका है और आपको और गर्म करने के लिए अगले दौर में माइक्रोफोन पे आ रहे हैं बड़े शान से सुजीत शान। Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. I am host and host Sujit San to take immense pleasure to welcome to all of you. This is a wonderful and auspicious ceremony here. इस वक्त सेमीफाइनल का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले चुका है। यहाँ कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी और सीआरपीएफ वंदे भी। सीआरपीएफ ने पहले Yes, Mohammad Alim brought into the attack, very successful bowler. और हलीम ने 10 विकेटें निकाली हैं अब तक इस पूरी आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। बहुत ही अभी युवा हैं लेकिन बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन आज की सुबह जिस तरीके से सिद्दीकी भावे सर ने बताया कि जहां से कमेंट्री छोर इंड से जब गेंदबाजी हो रही है तो गेंद थोड़े कम स्किड कर रही है, लेकिन रेहान संजरी इंड से जब भी गेंदें हो रही है वो सेम मोमेंट के सहारे गेंद अंदर या बाहर निकल रही है। इसी बीच हलीम की अंदर आती हुई गेंद, क्योंकि लंबे कद के हैं और अंदर की तरफ आइए, इन स्विंगिंग डिलीवरी थी और सही तरीके से खेल नहीं पाए। एक प्लान के तहत बल्लेबाजी चल रही है कि यहाँ पर हम किसी तरीके से स्कोर पर 20 रन बोर्ड पर हैं 74 के जवाब में। मेरा अपना मानना है कि पिच ने आज मिजाज बदल दिया है। जिस तरह गेंदें रुक कर आ रही है, जिस तरह टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही, उसका एक कारण है कि बहुत ही ऐसी क्लाइमेट है, ओवरकास्ट कंडीशन है आजमगढ़ में और उसका थोड़ा बहुत लाभ गेंदबाजों को मिल रहा है। और जो पिच की सर सतह है वो हम देख रहे हैं थोड़ी खुरदुरी हुई है, आसानी से गेंद बल्ले पर आ नहीं रही है। जब आपने देखा होगा अंकुर बल्लेबाजी कर रहे थे, देखिए इस गेंद में शॉर्ट थी, वाइड थी, काफी बाहर थी, हालांकि मिड ऑन पर एक फील्डर तैनात है। 1 रन अब यहाँ से इस ओवर में कुछ रन बनाने की आवश्यकता है टीम कामाक्षी ग्रुप को। ये सेमीफाइनल अब धीरे धीरे मैच की जो तस्वीर है वो साफ होती जा रही है। अगर हम प्रेडिक्ट करें तो सीआरपीएफ हावी नजर आ रही है कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी के ऊपर। पिछला शॉट देखिए, खेलना चाहते थे ऑफसाइड में, अतरिक उछाल था, बल्ले के अंदर लगी, थोड़ा सा फिर रुक के गेंद आई, चली गई मिड ऑन पे। और आज सुबह का जो पहला ओवर 1 ओवर 2 रन बहुत ही बढ़िया ज्ञानेश्वर शर्मा ने शुरुआत की थी। इसी बीच ये उड़ता हुआ स्ट्रोक्स खेला है, उसके पीछे फील्डर भागते हुए आ रहे तेजी से और ये मनीष सिंह वहां पर मौजूद थे। अगर ये कैच होता तो मुश्किल में फंस जाती यहां पर टीम कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी। बहुत ही ये मुश्किल कैच नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था। इस कैच के पीछे भाग सकते थे, अच्छा प्रयास था। एज विकेट कीपर अक्सर ये आजमगढ़ में क्रिकेट खेलते हैं मनीष सिंह और इनके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है, ऐसे कैचेस ये पकड़ते हैं। लेकिन कामाक्षी ग्रुप को अब यहाँ बहुत ही जरूरत है 1-2 बड़े स्ट्रोक्स की ताकि कॉन्फिडेंस लेवल उनका अच्छा हो। ये कैच बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला है और बड़े मैच के लिए नुमान शेख को जाना जाता है। आज टीम उनसे उम्मीद कर रही है कि एक बड़ी पारी खेल के दे। इस बार बड़ा स्ट्रोक्स सीधे पैरों पर आ रही इस गेंद को फ्लिक किया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। U06 ऑफ द मॉर्निंग। देखिए मुसेब आलम ने कल पवन केनी को 5 पे 5 सिक्सर लगाए थे। उनका जो कैच छूटा है ये बहुत सरदर्द बन सकता है सीआरपीएफ के लिए, क्योंकि मुसेब आलम एक बार शुरू हुए तो उनको रोकना मुश्किल है। कुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ सेमीफाइनल। और वो जो
एक इरादे तो स्पष्ट हो गए कि बल्लेबाजी के कि ये ज्ञानेश्वर शर्मा और अंकित कल्की के पीछे नहीं जा रहे। ये अदर्स जो बॉलर है उनके ऊपर जो अटैकिंग शॉट्स लगाने का पूरा प्रयास है। इस ओवर में 2 बार इन्होंने ऐसा प्रयास किया। इस बार पैरों पर थी ये गेंद, उस तरफ फील्डर भी नहीं है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर जा रही है 4 रनों के लिए। Great shot in front of his leg, tucked away nicely, left off the fielder, one bounce, cross the boundary for 4. और सर Musab देखिए- Alam right on top now, dropped as catch and huge hit and a delicate flick stroke through the square leg fence for 4. ये चौथा ओवर चल रहा है। ज्ञानेश्वर शर्मा ने अपने पहले ओवर में 2 रन खर्च किए और अंकित कल्की ने 11 रन। ज्ञानेश्वर शर्मा ने अपने कोटे में 2 ओवर 8 रन, क्या बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की और एक सफलता उन्हें हासिल हुई। अंकुर सिंह जो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की अब तक इस पूरी श्रृंखला के अंदर। शान देखिए, सेमीफाइनल बड़ा मैच रहता है, परफॉर्मेंस बड़ा होना चाहिए। इसी बीच थोड़ी लेंथ को खींचा है। हॉप बॉली प्रति लॉन्ग ऑन के ऊपर खेले, वहां पर गिलमान खड़े हैं गेंद को उठाते। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन 74 के जवाब में। अब यहां से चाहिए 40 रन। देखिए एक बात बचे कहता हुए। हूं मैं शान आपको, 3 ओवर में 40 चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है 13.33 का है। इस मैच का जो भी क्लाइमैक्स है, जो भी फाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि ऑल इंडिया अकाउंट ने अपने बॉलिंग का कोटा पूरा किया है, यानी एक बाकी है, अंकित का बाकी है। आने वाला जो बल्लेबाज है गुजरात की खुशबू बंटी पटेल, क्योंकि अंकुर आज नहीं चले, मुसेब आलम भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और नोमान के गेंद बल्ले भी नहीं आ रही है। देखिए एक बात है कि आने वाला बल्लेबाज जो है बंटी पटेल, वो साबित कर देगा कि कौन पहुंच रहा है फाइनल में। ये बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है और ये इस मैच का निर्णायक ओवर साबित हो सकता है। क्यों? ये बैटिंग पावर प्ले है, अंकित कल्की की हाथों में गेंद है, इसके बाद 2 ओवर आने शेष है। 13.33 का रन रेट का जरूरत है। मुसेब आलम और नुमान शेख, ये दोनों टीम कामाक्षी ग्रुप के आइकॉन है, चॉइस प्लेयर है। बहुत कुछ डिपेंड करता है और ये मैच का अकॉर्डिंग टू मी ये निर्णायक ओवर साबित हो सकता है दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल, यहाँ से कामाक्षी ग्रुप चाहेंगी कि तेज रन बनाए और उनको रोकने की कोशिश होंगी सीआरपीएफ की, ताकि डेथ ओवर में दबाव आए। और सर हमने देखा है रेहान संजय से जब भी गेंदें डिलीवर हो रही हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हो रही, कभी असमान उछाल ले रही हैं, कभी वो नीचे रह जा रही हैं। और अंकित कल्की एक भारत के अच्छे टॉप 5 गेंदबाजों में इनका नाम शुमार है, लेकिन उनके सामने जो बल्लेबाज हैं मुशेब आलम इस श्रृंखला में बहुत अच्छा किए। इसी बीच ये वाइट का फैसला निश्चित तौर पर गिरने के बाद, अगर आपने देखा होगा अंकित कल्की ने किस तरीके से अपना रिस्ट का प्रयोग किया था, जैसे ही गेंद उन्होंने डिलीवर की यहीं से लग गया कि वो ऑफ स्विंग यानी आउट स्विंग करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ऑफ कटर गेंदबाज है, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए उनकी गेंदें बाहर निकलती है। इस तरह जब बाएं हाथ का बल्लेबाज होता है तो अंकित के पास बहुत अच्छा अनुभव है कि इस स्थिति में वो गेंदों को कहाँ रखना चाहेंगे। मुसेब आलम से थोड़ा दूर रखना चाह रहे हैं। हाँ, यही उनका प्रयास है और पहली गेंद में अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया उन्होंने। इसे बीच ये पैरों पर आ रही थी, ये इन स्विंग इन डिलीवरी थी, रन आउट का चांस बन रहा था यहाँ पर। हालांकि नोमान जो जल्दी, क्योंकि थोड़ा पैरों में उनके दिक्कत है, अब यहाँ से 2 ही चीज हो सकती है। ये जो 4 गेंदें 5 गेंदें आनी इस ओवर में, ये बैटिंग पावर प्ले है, इसका फायदा उठाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अंतिम ओवर में बंटी पटेल से आप 20 रन 25 रन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नोमान शेख हालांकि बहुत बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी तक वो शॉट उनके बल्ले से नजर नहीं आया। और अंकित कल्की और ये जिन्हें सीआरपीएफ गाजीपुर के ऑल इंडिया आइकॉन हैं, दूसरी तरफ कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी के जो आजमगढ़ आइकॉन हैं, आमने सामने बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, बहुत ही निर्णायक मोड़ पर यह मुकाबला करवट ले रहा है। 36 रन 74 के जवाब में ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद उछाल लेते हुए थोड़ी सी इन स्विंगिंग डिलीवरी गिरने के बाद थोड़ी सी Great शॉर्ट और bowling. वाइड बॉल। This is the extraordinary bowling from Ankit Kalki. He bowled excellent pitching on the good lane spot and rising delivery
Noman tried to punch that ball, which in the end of the surface. Lovely ball. अंकित, कल्कि के इस ओवर में जो 3 गेंदें आई हैं, 3 अलग अलग दिशाओं में 3 अलग अलग वेरिएशंस के साथ, ये इस बार लाइकली टू बाउंड्री, 5 रन्स, ये बोनस के रूप में तोहफा कबूल कीजिए जनाब। क्या कह सकते हैं सर? बोनस के रूप में नहीं, मैं कहूंगा कि यहाँ से मैच शुरू कर दिया है सीआरपीएफ ने कामाक्षी के हक में, यहाँ से मैच शुरू कर दिया है। हाँ, ये 13 का आस्किंग चाहिए था। अगर सिर्फ एक बाउंड्री इस ओवर में अगर कैसे भी टीम्स कामाक्षी ग्रुप हासिल कर लेगी, फिर ये मैच उनके लिए फिर से ओपन हो गया। एग्जैक्टली यहाँ से मैच शुरू हो चुका है। 5 रन आप अगर अतिरिक्त देते हैं तो फिर दिल गलती कर बैठे तो कफारा है, लेकिन क्रिकेट में गलती नहीं। 41 रन सर्वेश यादव जी देख रहे हैं लाइव मुकाबला। इसे भी जब बढ़ता हुआ स्टॉक शॉट लगाया है, उसके पीछे फील्डर मौजूद है। बहुत ही बढ़िया ये कैच पकड़कर सौरभ श्रीवास्तव ने फिर खलबली मचा दी है। फिर अपनी गेंदों को बढ़िया यहाँ ड्रिफ्ट कराते हुए अंदर की तरफ लाए, एक बड़ी सफलता लग गई है। बंटी पटेल निकल रहे हैं अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए। बंटी पटेल, देखिए कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेंगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर बंटी पटेल चल गए तो फिर कामाक्षी को कोई रोक नहीं सकता, और बंटी पटेल अगर नहीं चले तो फिर सीआरपीएफ को कोई नहीं रोक सकता। जावेद भाई भी बिल्कुल हम देख रहे हैं कि देखिए समझ में नहीं आ रहा कि कौन जीत रहा है। खिलाड़ी तो बहुत हैं, लेकिन बंटी पटेल गेम चेंजर है, इस बात का ध्यान रहे। ये इम्पैक्ट प्लेयर रहे। इस पूरी श्रृंखला में बंटी पटेल ने गेंद और बल्ले दोनों से अपना जादू दिखाया है। बहुत ही बढ़िया। एंड से जब गेंदबाजी हो रही है तो गेंदबाजों को बहुत मदद मिल रही है। बहुत स्विंग्स प्राप्त हुई है, और ये तो मैदान के ऊपर जाने के बाद स्थिति समझ में आएगी कि इतनी गेंदें उस रेहान संजरी से क्यों टर्न ले रही, लेकिन ये बहुत बड़ी विकेट। देखिए बंटी पटेल भी गर्म पानी में आए, सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। 15 रन इससे पहले वो ओवर में हलीम ने खर्च किए थे। कल्कि का ये ओवर अभी तक एक वाइड को छोड़ दे, बढ़िया गेंद उछाल लेती हुई गेंद, थोड़ी नस्टी बाउंसर कह सकते हैं, 1 रन पूरा कर लिया। बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है थ्रो किया था, क्योंकि ये विकेट्स की अहमियत समझ रहे बंटी पटेल। दोनों खेमे से हम देख रहे हैं लगातार जो है आवाजें आ रही है। अभी ये मैच का जो पड़ला है 50-50 पर सर मुझे नजर आ रहा है। कमाल की गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद बंटी पटेल के सीने के करीब आई थी, मजबूर कर दिया था बंटी को पुश करने के लिए। और क्या क्रिकेट चल रहा है मैदान के ऊपर। सेमीफाइनल हो तो ऐसा होना चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैच किस तरफ बदल रहा है। इस तरह के मैचेस ही तो दर्शक देखना चाहते हैं। कट टू कट मुकाबला, कांटे की टक्कर हो रही है, कश्मकश। बची हुई गेंदों पर 32 रनों की दरकार है। इसी बीच थोड़ी सी उछाल लेती हुई स्लोअर मूवमेंट मिला, थोड़ी सी उछाल भी ली, गेंद बाहर की तरफ निकलती हुए। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया निर्णय अंपायर का। गेंद ने टिप्पा खाया था, उसके बाद स्टंप्स के पीछे जाके ज्यादा स्विंग हुई थी। लाजवाब अंपायरिंग दबाव की स्थिति में। बहुत ही शानदार अंपायरिंग अब तक सभी अंपायर्स के द्वारा, संदीप सिंह जी राजपूत, गौरव यादव जी, और इसी बीच ये पैरों पर गेंद की है। ये मौका था, इंतजार कर रहे थे ऐसी गेंदों का, और जब पैरों पर आती तो मुझे ब्रायन लारा की वो फ्लिक्स याद आती हैं। ये 6 रन छक्के की बदौलत स्कोर पहुंचा 48 रन, 48 रन 74 के जवाब में। आगे कमेंट्री के लिए मैं हमारे बड़े भाई सिद्दीकी भावे साहब। थैंक यू शान। क्या मुकाबला हो रहा है। इसीलिए तो कहता हूं कि आजमगढ़ प्रीमियर की झलक सारी दुनिया से अलग। ये जो शॉट आया है, मैं समझता हूं कि वो जो कैच छूटा था मुसेब आलम का, लेकिन ये जो शॉट उन्होंने खेला वाजंट अ बैड डिलीवरी। खराब गेंद नहीं थी, बिल्कुल गोल्डन ग्रीनिश की तरह एक टांग उठाकर उस शॉट को ब्रायन लारा जिस तरह खेलते थे, सनत जयसूर्या ऑफिस हिप्स खेलते थे, वैसा खेला। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला पहला सेमीफाइनल चल रहा है, जहां 12 गेंदों में जीतने के लिए कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी को चाहिए 26 रन। बने रही हमारे साथ, डोंट गो अवे। ये जो ओवर है ना,
ये दोनों टीमों के गले की हड्डी है, ना निगले जाए ना उगले जाए। बहुत से वीआईपीज मंच पे हैं, सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरे साथ एक्सपर्ट्स कमेंट्स के लिए शान मौजूद है, लेकिन देखना है कि गुजरात की शान, गुजरात की खुशबू इस वक्त क्या करती है। एक गेंद का सामना किया है। देखिए, बंटी पटेल ने घाट घाट का पानी पिया है, उनको पता है इस तरह के कई ऐसे मैचेस है सर, मैं आपको जिसमें बता उन्होंने बल्लेबाजी की है। जी जी, जो गेंदबाज हैं ये भी बेलगावी पैंथर्स के लिए क्रिकेट खेलते थे और सीजन बॉल से एक लंबा अनुभव है इनके पास। राम शरीक यादव, राम शरीक यादव बंटी को खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, 6 रन। ये है बंटी पटेल। क्या गजब का स्ट्रोक है। मनोज, राम शरीक की जो थोड़ी बहुत नींद रही थी वो भी उड़ गई होंगी। और ये कह सकते हैं कि बंटी ने घंटी बजा दी है सीआरपीएफ की। आप 11 गेंदे और 20 रन। मैंने पहले ही कहा था, बंटी पटेल इज द डेंजरस कस्टमर इन टाइट सिचुएशन। बहुत ही गजब के खिलाड़ी हैं। ऐसे तो कोई खुशबू का नाम नहीं पाता है। सर, जमाल राइडर्स की प्लेइंग 11 हमारे पास है। टीम बुलंदपुर लायंस का प्लेइंग 11 हमारे तक पहुंचा दे। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए बंटी को फुल टॉस खेल दिया है। ओ माय गॉड, क्या ये कैच है या सेमीफाइनल है? देखिए, बंटी भी हैरान है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी कितने जल्दी डाउन द ग्राउंड स्क्रीन के पास आए। 1 गज अंदर इस कैच को लिया है। इसे कहते हैं मुकाबला। ये शेरों की लड़ाई है, पल पल करवट ले रहा है ये मुकाबला। ये मुकाबला नहीं, ये महामुकाबला है। ऐसे लग रहा है महाभारत के रण में दोनों टीमें परास्त होने को बिल्कुल तैयार नहीं यानी है। आपका कहना है कि फाइनल से पहले फाइनल, फाइनल से पहले ये फाइनल चल रहा है और ऐसा सेमीफाइनल अनबिलीवेबल। आज जो इस मैच को देख रहे होंगे वो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे जिस परिस्थिति में यह मुकाबला चल रहा है। देखिए, बंटी पटेल थोड़ा सा निराश कदमों से गए। शॉट अच्छा खेला था, लेकिन जो लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी था वो बहुत ही स्टैटिश था, एक ट्रैप था। अब देखिए, गेंदे बचिए 10 और रन चाहिए 20। विकेटें गिरी 3 विकेटें बहुत हाथ में। ये जो एक गेंदों पर जो 2 रन का आंकड़े होते हैं, 10 गेंदों पर 20 रन, ये बड़े ही दिलचस्प होते हैं। बंटी पटेल के आउट होने के बाद नए बैट्समैन अभिषेक आए हैं। राम शरीक यादव, अभिषेक को स्विंग कर दिया है, जीती क्रिकेट, भिंगड़ी शॉट, 6 रन। अगर इस गेंद में हम देखें सर, ये बिल्कुल हॉप बॉल थी अभिषेक के लिए। ये उनका मजबूत जोन है, उसी जोन में गेंद डाली गई। जो डेंजर, जो बल्लेबाज जिसका वेट करता है, बढ़िया बैट का बस एक फ्लो दिखाया, कलाइयों के सारे ये 6 रन। देखिए, अंकुर सिंह ने यह आदेश दिया है, आखिरी ओवर में मैच आपको फंसाना नहीं है, चाहे 2 विकेट जाए। ऐसे ही डगआउट में अब आप देख सकते हैं, टेस्टी वाइट डगआउट में खुशी की लहर। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 60 रन। अब 9 गेंदों में 14, एक तुम्हारी एक हमारी। पहली पे सिक्सर, दूसरी पे विकेट, तीसरी पे सिक्सर। राम शरीक यादव को कट किया। ओ माय गॉड, दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। राम शरीक ने चलता कर दिया था अभिषेक को, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी ने ये कैच छोड़ा। 2 कैचेज उनके पास आए। आपने देखा होगा मुसैब ने 2 छक्के लगाए थे, वो अभी भी क्रीज पर है। वो भी कब लगाया, जब मनीष सिंह ने कैच छोड़ा था, और ये भी बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े थे। ये कोई मुश्किल कैच नहीं है, या ऐसे कैचेस मैच में पकड़े जाने चाहिए। और टीम एक ने कैच आपने छोड़ा, बल्लेबाज भी अच्छे, और आपने 1 रन भी खर्च कर दिए। ये फील्डिंग पे थोड़ा सवाल या निशान आता हुआ। अगर ये मुकाबला सेमीफाइनल सीआरपीएफ गाजीपुर हारेंगी तो फील्डिंग की वजह से। क्षेत्र क्षण राम शरीक यादव, मुसैब आलम को हवा में स्ट्रोक, फील्डर नीचे, बढ़िया कैच, आउट। क्या कैच पकड़ा है राम शरीक यादव ने,
कपिल देव की याद ताजा कर दी 1983 की। ये कैच पकड़ा है या मैच बदला है भावे सर? ये तो सेमीफाइनल है, ये मैच नहीं सेमीफाइनल। ये फाइनल से भी बड़ा फाइनल चल रहा है। ये हम कह सकते हैं कि आज ये दूसरा फाइनल चल रहा है। जिस तरीके से ये करवट, हर गेंद पर करवट ले रहा है मैच। राम शरीक यादव का ये इवेंट फुल ओवर चलता हुआ। अब साहिबा मोमिन बता रहे हैं कि गेंदे बची है 7 और रन कितने चाहिए? सर पहली 13 बार मैंने 7-13 का इक्वेशन है और 7 मेरा निभारे शान। हालांकि दुनिया में हर आदमी एक दूसरे से कहता है 7-13 चाहिए, ये अलग बात है, देता कोई नहीं। 7 गेंदों पर 13 चाहिए। पहली बार मैं देख रहा हूँ साहिबा मोमीन साहब बेचैन हुए पूरी श्रृंखला में। क्या मुकाबला चल रहा है, कमजोर दिल वालों के लिए ये मैच नहीं बचा है। किसी के सर पे टोपी नहीं है, सब सर खुजला रहे। मैच में इतना इक्वेशन, इतना रणनीति, इतना परिवर्तन, अनबिलीवेबल। दिस इज अ नेम ऑफ क्रिकेट। सालिम आए नए बैट्समैन राम शरीक यादव। सालिम को ड्राइव किया है बहुत तेज, बढ़िया फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ पे थोड़ी सी चूक और यहां पे अंपायर ने आउट दिया है बैट्समैन अभिषेक को। आप क्या कहेंगे? सर अब चाहिए यहां से 6 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता है। 12 बज गए मैच के, 12 बज गए मैच के। 6 गेंदे 12 रन। आप कहां देखते हैं मैच को, 50-50, 40-60 या 70-30? मैं सर 50-50 पर सर अभी भी देख रहा हूं, क्योंकि अबू सालिम कुजियारी, आपको किससे राहिल- उम्मीद है बल्लेबाजी की तरफ से? सर ये डिपेंड करता है बॉलर कौन है और गेंदबाज कौन रहेगा? हाँ ये डिपेंड करता ये है कि मैं गेंदबाज किस के हाथ तरफ- में आपको पता है क्या दिया जा रहा है? देखिए दोस्तों, ये जो 6 गेंदे हैं ना, ये लगभग या तो 3,33,000 की है या तो 2,22,000 की है। का यही ओवर है वो सर। सिद्दीकी इतनी भावे- महंगी गेंदें कभी नहीं रही टेनिस क्रिकेट के हिस्ट्री में। इतनी महंगी कितने में आती है 70 की गेंद? 70 रुपए। 70 रुपए में। ये 6 गेंदे या तो 3,33,000 की है या तो 2,22,000 की। 3,33,000 ये जो बड़ी प्राइस हाँ, है। देखिए शान, मैंने सुना है आप बहुत ब्रिलियंट माइंड है। आप मुझे बता सकते हैं 365 डेट्स रहते हैं दुनिया में, कौन सी ऐसी डेट है जिसमें सबसे कम बच्चे पैदा होते हैं और उस दिन सबसे कम शादियां होती? प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या सोच रहे हो? 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है। एक बार आता है सर। खेल की शुरुआत 6 गेंदे, रन चाहिए 12 और 12 बजने में अभी पौना घंटा बाकी है। पीछे हटना है प्लीज। बुढ़ानपुर बुलंदपुर लायंस सर, आप अपने कैंप से, हमारे मेहमान कैंप से गेंदबाजी के लिए सौरभ श्रीवास्तव अपने क्रिकेट करियर का सबसे अहम ओवर लेकर सौरभ श्रीवास्तव। गर्म पानी का मुकाबला आप देख रहे हैं। सौरभ श्रीवास्तव पहली गेंद, बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, पीछे खिलाड़ी है, 1 रन, दूसरे की कॉल, 2 रन पूरे होते हुए। बहुत बेहतरीन शॉट खेला था राहिल खान ने, दिलकश कवर ड्राइव बैकफुट पे। 5-10 का इक्वेशन। 5 गेंदों पर 10 रनों का इक्वेशन। थोड़ी सी ऑफ कटर ये गेंद थी, बाहर की तरफ लूप होती हुई। सर आपको क्या लग रहा है अभी इस मैच में 5 गेंदों पर 10? राहिल इस श्रृंखला में जो इन जीशान, जो इनके एक कैटेगरी के प्लेयर थे, उनकी जगह पर इनका सिलेक्शन है। इस मैच की प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, भविष्यवाणी पेशन गोई नहीं की जा सकती है। पैसा उसूल मुकाबला। देखिए पूरी कमेटी, चाहे शानवाज हो, असीम हो, इसे कहते हैं आजमगढ़। एपीएल कमेटी का पैसा और मेहनत दोनों उसूल होती भी। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग। सभी दर्शकों की नजर इस मुकाबले के ऊपर बनी हुई है।
सौरभ श्रीवास्तव, ये देखिए दबाव, दबाव क्या चीज है, क्योंकि यहाँ बल्लेबाजों को भी गर्म जमीन लग रही होंगी, गेंदबाजों को भी लग रही होंगी और फील्डरों को भी लग रही होंगी। सौरभ श्रीवास्तव, 5 गेंदों की कीमत अब ज्यादा होगी है। राहिल खान को बढ़िया गेंद, बीट किया। अपील तो हो रही है उत्साह में, मेरे ख्याल से वाइट के लिए रिव्यू लिया अंपायर्स। देखिए दबाव क्या चीज है, आपके पास कहते हैं कि लास्ट डेट है और वाउचर पड़ा है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। राहिल ने सोचा आखिरी ओवर है, फेयर डिलीवरी, मुझे पता था वो बीट हुए हैं। अब चार- मनोवैज्ञानिक दबाव कामाक्षी ग्रुप के ऊपर। 4 गेंदे 10 रन। 4 गेंदों पर सर 10 रनों की जरूरत है। सौरभ श्रीवास्तव के पास एक्सपीरियंस है, राहिल यंग है, दोनों के बीच में एक बढ़िया दिलचस्प कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। पैसा वसूल मुकाबला आप देख रहे हैं, हाई वोल्टेज ड्रामा। सौरभ श्रीवास्तव, राहिल खान के लिए डगआउट में इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? इस मर्तबा खेलने की कोशिश, फिर अच्छी गेंद, ओ माय गॉड, यहां पर डॉट गेंदे जो है वो किसी सोने के टुकड़े से कम नहीं। देखना है कि अंपायर ने वहां क्या निर्णय दिया है। अंपायर के सॉफ्ट सिग्नल का वेट कर रहे हैं। देखना है कि वहां पे आउट क्या दिया है, पहले तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। विकेट कीपर प्रेजेंट साहब माइंड का यूज किए हैं और अंकित कल की गेंद की तरफ लपके भागी कि कहीं कोई बल्लेबाज फिर से रन ना ले ले। प्रेजेंट साहब माइंड देखे इसी को कहते हैं। हालांकि दोनों अंपायर्स के बीच में वार्ता हुई है। अब संजीव सिंह मऊ जा रहे देखने के लिए। यस, राहिल खान को आउट घोषित दिया गया है और नए बैट्समैन अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं। इस वक्त कामाक्षी ग्रुप की तरफ से शुभम, गेंदे बची है, साहिबा बता रहे हैं कि 3 और रन अभी भी चाहिए 10। देखिए सेमीफाइनल को जीतने के लिए कामाक्षी ग्रुप को 10 का दम दिखाना होगा। सर भावेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? 6 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी, 3 ओवरों में 40 थे, 2 में चाहिए थे 26, अब चाहिए 12, 6 गेंदों पर 12, फिर 1 गेंद पर आया 2 गेंदे भी डॉट, अब चाहिए 3 गेंदों पे 10। अगर सौरभ श्रीवास्तव इस मैच को जिताते हैं तो पूरी जिंदगी उनको अपना ये ओवर याद रहेगा। अगर इस मैच को शुभम जिताते हैं तो उनको पूरी जिंदगी ये 3 गेंदें याद रहेंगी। ये यस, क्रिकेट का सबसे महंगा, ये 3,33,000 रुपए के लिए एक टीम क्वालिफाई करेगी, 2,22,000 के लिए। एक गेंद या तो 1,11,000 की या तो एक गेंद 73,000 की। हाँ, एक गेंद 1 लाख रुपए की यहाँ डिलीवर होने वाली है। क्या मुकाबला है शुभम। देखिए दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है, अंपायर का जो निर्णय रहेगा अंतिम। सौरभ श्रीवास्तव अपने स्टेप में चुके, डेड बॉल, 3 गेंदे 10 रन। हाई वोल्टेज ड्रामा आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। दिल की धड़कनें, हार्ट्स बाइट्स बढ़ती हुई, और ऐसे टाइम ना हाथों में ठंडे पसीने आते हैं। सौरभ श्रीवास्तव, रियान संजरी एंड से शुभम को हवा में खेला हुआ स्ट्रोक है, सेफ लैंडिंग, 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 2 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन। और अंकुर सिंह के टीम के सामने अमिताभ का आखिरी रास्ता
और अंकुर सिंह के टीम के सामने एक ही रास्ता, हिट आउट और गेट आउट। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में पहली बार देख रहे हैं, अंपायर्स मुस्तैद है, फील्डर्स मुस्तैद है, दोनों कैंप्स में बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। हमारे मेहमान कैंप्स में मेहमान खड़े हुए, सभी टीमें खड़ी हुई हैं। क्या गजब का माहौल है। शान 2 चौके लगे तो आजमगढ़ प्रीमियर लीग सुपर से ऊपर हुई है, सुपर ओवर होगा। श्रीवास्तव, ओ दबाओ। देखिए, इस तरह के मैचेस रहते हैं, उसमें आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल प्रेशर कुकर पे चल पड़ता है तो उसकी सीटी बज जाती है। ये तो खिलाड़ी हैं। श्रीवास्तव, ये बल्लेबाज की चाल है, ये बल्लेबाज की चाल है। उनके जो दिमाग में था उसको काटने की, इसे कहते हैं शतरंज की बाजी को यहां से वहां किया जा रहा है। शतरंज की बिशात का ये वो मोहरा है जो दोनों टीमें प्रयोग कर रही है। 4 बार अपने रनअप से चुके और अबू सालिम के पास वो टैलेंट है। देखना है 2 गेंदों पर 9। सौरभ श्रीवास्तव, रेहान संजरी एंड से क्रिकेट करियर की 2 अहम गेंदे। ओ एज, नो बॉल। कहानी में ट्विस्ट, उफ, कहानी में ट्विस्ट और मैच होता हुआ सुपर हिट। ये कहानी में ट्विस्ट नहीं, ये सुपर ट्विस्ट हो चुका है। नो बॉल अहम वहां पे मौके दिया पर गया नो है और बॉल। मेरे ख्याल से तीसरा अंपायर स्टेप मांगा है, तीसरे अंपायर को कॉल किया वहां पर। अब जो गेंदबाज है ना, उसका कलेंजा हलक में आके रुका होगा। नो बॉल। कमाल की अंपायरिंग, अंपायरों के लिए तालियां होना चाहिए। अंपायर सिंह, एक्सीलेंट अंपायरिंग। दबाव की स्थिति में 2 गेंदे 7 रन, पिक्चर बदल गई। ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड, और ये फ्री हिट है, इंग्लैंड के किसी स्क्वाड पे पेंडुलम, कभी यहां तो कभी वहां। ये मैच भी उस तरह पलटी हो रहा है। आपके पास सर 28 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी एज है 28 साल, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन कैरियर में इतना मैच करवट लेते हुए आज तक नहीं देखा। देखिए, इस तरह के मैचेस मुझे और हरीश पंड्या को तो करने की आदत सी पड़ गई। श्रीवास्तव, इस मर्तबा तान दिया है, पीछे खिलाड़ी, लेकिन ये फ्री हिट है, भूल गए वहां पर। मेरे ख्याल से राम शरीक यादव थे वहां। एक ही रन। लेकिन एक बात है कि यूपी के इतिहास का ये सबसे अच्छा मुकाबला है, यूपी क्रिकेट के इतिहास का। आखिरी गेंद 6 रन। एक गेंद की कीमत सर 3,33,333 रुपए, या तो- 2,22,222 रुपए। आपको पता है ये गेंद का सस्पेंस क्या है, क्लाइमैक्स क्या है? सलीम जावेद अगर दीवार पिक्चर के बाद अलग नहीं होते तो भी इसका क्लाइमैक्स नहीं लिख पाते। नहीं लिख पाते। इतना टर्निंग मैच, इतना कन्वर्ट होने वाला मैच अपने जिंदगी में ये पहली बार देख रहे हैं कि ये निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कौन सी टीम जीतेगी। और अंततः 1 पर 6। और शान, एक बात है कि इतने दर्शक हैं, लेकिन दोनों टीमों के लिए तालियां नहीं आपके आई है। जोरदार तालियां बजाए। सौरभ श्रीवास्तव, 1 गेंद 6 रन, सामना करेंगे सालिम। ये मुकाबला बाराबंकी और उसके बीच नहीं है, गाजीपुर। ये मुकाबला सालिम और श्रीवास्तव के बीच में है। दोनों एस और सुपर मुकाबला, सुपर से ऊपर मुकाबला। 1 गेंद 6 रन। कमजोर दिल वाले मैच से हट जाएं, कमजोर दिल वाले मैच से हट जाएं। श्रीवास्तव, रेहान संजरियन से सालिम के लिए
शोर उभरता हुआ, गेंद को उछाल दिया है, गोल्डन सिक्स हिट बाय सालेम and Barabanki qualify for the grand finale. Congratulations Bunty Patel and congratulations Ankur Singh. रिमेंबर दिस नेम, अबू सालिम कुजियारी, एक गेंद पर 6 रन, इतिहास कीर्तिमान को स्थापित कर दिया है। यहाँ कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी को एक गेंद पर 6 चाहिए थे। 8 लाख गाजीपुर किनारे पे डूबने का गम भारी होता है। इतने दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला दर्शकों को, आज पैसा वसूल। मैन ऑफ द मैच, इस मैच के हीरो रहे, नायक रहे मोसैब आलम। ओवर टू प्रेजेंटेशन हरीश पांड्या सर।